ووٹ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو حکومتیں حل کریں. عام شہری جو گھر میں بیٹھا ہے وہ تو اپنے دال روٹی کے فکر میں ہوتا ہے, وہ کیا جانے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا ہے. وہ اسی لیے ٹیکس ادا کرتا ہے کہ ان کا جو فائنانس منسٹر ہو, ان کا جو وزیر اعظم ہو, ان کی جو حکومت ہو, وہ ان کے لیے ایسی پالیسیاں بنائیں کہ وہ اقوام عالم کے اندر ایک ملک ایسا بنے جو اپنے لیے اور اپنی عوام کے لیے ایک ایسی سہولیات پیدا کرے کہ عوام سکھ کے سانس کے ساتھ رہ سکیں. جب ہمیں حکومت ملی تو آپ کو بار بار ٹویسٹ کر کے باتیں بتائی جاتی ہیں. حقیقت یہ تھا کہ ملک کو کنگلا کر دیا تھا, بالکل دیوالیہ کے قریب تھے. 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا, بوجھ تھا ہمارے اوپر جو ہم نے ادا کرنا تھا. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ یہ ہے. میں صاف لفظاں دسن چاہنا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کی ہوندی ہے. آپ کو ایک تو میں آج صاف لفظوں میں جی ڈی پی گروتھ بتاتا ہوں, دوسرا آپ کو جو معیشت کی گروتھ ریٹ ہے اس کی کہانی ان کی بتاتا ہوں کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں. اگر آپ ایک اپنا گھر ہے آپ کا 10 مرلے کا, آپ قرضہ لے کے اس کے اندر فریج بھی لیں, باتھ روم توڑ کے بھی بنانا شروع کریں, آپ اس کے اندر بیڈ روم توڑ کے بھی بنانا شروع کریں, چھت کے اوپر ٹینکی بھی بنانا شروع کر دیں, تو گروتھ تو نظر آئے گی. گھر میں 2 کمرے بھی اور ڈال دیں, آپ کو ضرورت نہ ہو کمروں کی لیکن آپ کمرے ڈال دیں 2 اور, تو گروتھ تو نظر آئے گی کہ یہاں پر پھل پھول رہا ہے, کام ہو رہا ہے. لیکن کیا یہ گروتھ ہے جو قرضے لے کر یہ کام کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ایک اورنج ٹرین دے دی گئی 200 ارب سے زیادہ کی, آج 12 ارب اس کا سالانہ سبسڈی دینی پڑ رہی ہے, باقی قرضہ اور اس کا سود الگ ہے. تو یہ تھی وہ گروتھ جو دکھائی جاتی تھی قرضے لے کے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 20 ارب کا. آج جب عمران خان کو تمام چیلنجز ملے, جس میں پہلا چیلنج چوروں کا ملا اپوزیشن کا, دوسرا چیلنج جو پوری دنیا کو ملا اس کے ساتھ پاکستان کو بھی ملا. پاکستان کے لیے وہ چیلنج اس لیے بڑا ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں 6واں ملک ہے, اور جو دوسرے بڑے ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے ان کے ریسورسز ہم سے کہیں زیادہ ہیں. تو اس لیے پاکستان کا جو چیلنج تھا وہ بڑا یونیک تھا, وہ شاید دنیا میں ایک بڑا یونیک چیلنج تھا کہ آبادی بھی بڑی تھی, اکانومی بھی بینکرپٹ کی ہوئی تھی انہوں نے. اس کے باوجود نہ صرف اکانومی کو سنبھالا دیا, اللہ کے شکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت, خاص عنایت پرائم منسٹر کے اوپر اور قوم کے اوپر کہ ہم نے کووڈ کو بہت ہی بہتر مینج کیا, اور ہماری کووڈ کا وہ نقصان نہیں ہو سکا. آج جب معیشت جو ہے وہ پوری دنیا کی نیچے ہے, تو جو پرسوں اعداد و شمار آئے ہیں رپورٹ میں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4% ہوگا اس سال کا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ عام سالوں میں بھی معمولی بات نہیں ہے جس طرح کا ملک دیوالیہ کیا گیا تھا. لیکن یہ اس حالات میں تو اور بھی امپورٹنٹ بات ہے, جب ملک کو دیوالیہ کیا اور اوپر سے کرونا کا ایفیکٹ ہو, پھر ہمارے خلاف ایک اور وہ جو چور اور ڈاکو ہیں انہوں نے ایک اور کام شروع کیا, نکمے نالائق نااہل. انہوں نے ایک برطانیہ سے بندہ ہائر کیا, ٹیوشن پڑھتے ہیں نا, جس نے ان کو بتایا کہ اگر ایک ہی لفظ بار بار ریپیٹ کریں تو لوگوں کے دماغ میں وہ سرایت کر جاتے ہیں اور لوگ وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اگر آپ یاد کریں تو ان کے یہ جتنے بھی طوطا اور مینا ٹیلی ویژن پہ آتے تھے وہ ایک ہی بات کرتے تھے, نکمے نالائق نااہل, اور بار بار ایک ہی بات کرتے تھے تاکہ عوام کے دماغ میں یہ جھوٹا امپریشن دے دیں. لیکن اللہ الحق ہے, جب سورج چڑھتا ہے تو آپ نے جس طرح کی مرضی اینکیں لگائی ہوں, روشنی آپ کی آنکھوں کے اندر جاتی ہے. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے نہ آپ کی طرح 7 کیمپ آفس بنائے, نہ 2200 کے سیکیورٹی گارڈ رکھے, نہ لاکھوں ڈالر کے دورے کیے. ایک ایک پیسہ بچایا, اس کا حساب لیا اور حساب دیا. 18 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے کام کیا,
एक छुट्टी नहीं की, ईमानदारी की, किसी किस्म के फ्लैट्स नहीं बनाए। तो आप मुझे बताएं, जब लीडर मेहनती हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, दिन रात काम कर रहा हो, ना चोरी कर रहा हो ना किसी और को करने दे रहा हो, तो ये तो फिर दुनिया के कानून के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। ये तो रब के इंसाफ के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। तो नतीजा तो आना था, और आज आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है, वो नतीजा आज आपके सामने है। आज हम खुद ऐलान कर रहे हैं कि हम बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि फसल अब लहलहा रही है, माइशत वापस आ गई है। वही माइशत जो हम आपको 3 साल से बताते आ रहे हैं कि बिल्कुल बहुत बुरा हाल ये करके गए थे, हम आपको आज ये खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, डगर पे वापस गाड़ी आ गई है। बहुत मुश्किल काम था ये। जब ये शहबाज शरीफ साहब कंप्यूटर के आगे मास्क लगा के बैठने के लिए आए थे, अब ये वापस भागना चाहते हैं, रातों रात भागना चाहते हैं। आपने देखा था किस तरीके से ये कतर एयरलाइन की फ्लाइट के ऊपर रातों रात भागना चाहते थे। ये क्यों आए थे वापस भला? ये इसलिए आए थे कि इनको पता था मईशत को तो बिल्कुल दिवालिया कर दिया हुआ है, अब कोरोना ने हिट किया है, तो अब तो बिल्कुल मुल्क बैठ जाएगा। इस अनारकी में एहतसाब तो होगा नहीं, और इस अनारकी में मेरा दाव लग जाएगा और मैं भी। तो अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह की जात फल देती है। और फिर जब आपका वजीर आजम एक सच्चा आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा हो, तो ये किस तरह मुमकिन है कि जो गरीब का दर्द करने वाला हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, 24 घंटे काम करता हो, अल्लाह उसकी पेशानी के ऊपर इज्जत ना लिखे? ये कैसे हो सकता है? ये दुनिया की तारीख में अल्लाह ने कभी ऐसे नहीं किया, ये इस बार कैसे होना था? तो हम अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र अदा करते हैं, अपनी कौम को मुबारकबाद देते हैं। मुश्किल वक्त निकला, हाँ, अब इसके जो समरात आप तक पहुंचने हैं वो भी शुरू होंगे। पहली सूरत में हमने कहा कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं। जब आप फसल बोते हैं, उसको पानी देते हैं, गंदम की फसल निकलती है, वो लहलहा रही होती, तो आपके घर में अभी अनाज आता नहीं है, लेकिन आप जब अपने खेत में जाते हैं तो आपको अपनी फसल लहलहाती हुई नजर आ रही होती है। अब वो स्टेज है। दाने भी आपके घर आएंगे अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट 13% बढ़ गई। अल्लाह का शुक्र है, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट देखिए आज कहाँ चल रही है। पावर लूम्स के नए यहाँ पर प्लांट लग रहे हैं, मेरे साथ बंदेशा साहब खड़े हैं, ये अपना एक नया लगा रहे हैं प्लांट। पावर लूम्स के नए प्लांट्स लग रहे हैं यहाँ पर। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ग्रोथ हो रही है। क्या कर रहे हैं आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। आपने ये देखा कि ट्रैक्टर्स की सेल सबसे ज्यादा हुई। मैं कुछ नंबर आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि बरामदात जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 साल की सबसे ऊपर की स्टेज पे है। मार्च में हमने रिकॉर्ड तोड़ा, 10 साल की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। इन चोरों के सारे जो 2 जमाने थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा, एक्सपोर्ट ऊपर गई। आपकी स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 साल के रिकॉर्ड तोड़कर ऊपर गई। आपके 27,000 पॉइंट्स को क्रॉस किया। करंट अकाउंट खसारा जो 20 अरब का छोड़ा था आज 1 अरब सरप्लस में है। आपके जो जखायर थे वो 9 अरब डॉलर के छोड़ के गए थे, आज 22 अरब डॉलर के हैं। मसलन आपके जो फॉरेन रिजर्व्स थे, जखायर थे, वो आज 22 अरब हैं जो 9 अरब छोड़ के गए थे। उसके साथ साथ आपका मसलसल ये 10वां महीना है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज, जो एक मैं भी हूं, मैं भी वहां से आया हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी जिनसे ये पैसे तो लेना चाहते हैं, लेकिन इन चोरों ने हमेशा उनकी मुहब्बल वतनी पे शक किया। ऐसे कानून बनाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इंतखाबी अमल से बाहर किया, ना उन्हें वोट देने का हक दिया, ना उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक दिया। जैसे वो कोई पराये हों, वो यहां से जाते हैं अपना जरिया माश कमाने के लिए बाहर, और उसके बाद एक एक पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं। उन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, क्योंकि एक शख्स ने हमेशा उनका एहसास किया, एक लीडर ने हमेशा उनका एहसास किया, और वो लीडर कौन है? इमरान खान। एक लीडर ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों की हिब्बुल वतनी पे कभी शक नहीं किया, हमेशा कहा कि वो पाकिस्तान का असासा है। मैंने आपको पहले कहा, अल्लाह का इंसाफ है, जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह की जात आपकी झोली खाली नहीं छोड़ती।
اور جب آپ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی جھولی اللہ میاں خالی چھوڑ دے. آج 10واں مہینہ ہے لگاتار. ایک تو وہ چور بیٹھا اوورسیز بنا ہے نا نواز شریف باہر جا کے, جو ادھر سے پیسے لے کے گیا ہے. آج 10واں مہینہ ہے لگاتار کہ اوورسیز پاکستانیوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں پاکستان میں پیسے بھیجنے کے. کبھی کوئی ڈوبتی اکانومی میں اپنا پیسہ بھیجتا ہے, کبھی کوئی بیٹھنے والے بینک میں اپنا پیسہ لگاتا ہے, نہیں لگاتا. اوورسیز پاکستانی جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو سب سے زیادہ جن میں سکل ہے, جن میں دماغ ہے, جو باہر بیٹھے ہیں, جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, 10واں مہینہ ہے انہوں نے پاکستان میں پیسہ بھیجنے کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. آپ کے فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ $2 سے ہر مہینے اوپر رہے ہیں. یہ جو پچھلے 10 مہینے یہ کبھی نہیں ہوا. تو تمام چیزیں, آپ کی گروتھ 4% ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ $20 ارب سے کم ہو کے $1 ارب سرپلس ہے, منافع ہے. آپ کی ترسیلات جو ہیں, جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج وہ زیادہ ہے, ایکسپورٹ زیادہ ہے, موٹر سائیکل زیادہ بک رہے ہیں. میرا نہیں خیال امیر آدمی موٹر سائیکل خریدتا, غریب آدمی خریدتا ہے. کاریں زیادہ خرید رہے ہیں, ایک منٹ, کاریں زیادہ خرید رہے ہیں لوگ. کسان کو گنے کا پورا پیسہ ملا ہے, اس کی وجہ سے ٹریکٹروں کی 38% سیل زیادہ ہوئی ہے. کسان کو مکئی کا پورا پیسہ ملا, سرسوں کا پورا پیسہ ملا, کسان کو گندم کا پورا پیسہ ملا. گندم کی ایک وافر مقدار ہوئی. رمضان پہلا آیا جس کے اندر آپ کو ٹماٹروں کے پیسے زیادہ نہیں دینے پڑے, پیاز کے پیسے زیادہ نہیں دینے پڑے, سوائے چینی کے تمام چیزوں کی قیمت کم ہوئی. اور چینی کی قیمتیں بھی ہم نے شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈال کے تمام خطرات کو مول لے کے, اس کو بھی اللہ کا شکر ہے سبسڈی دیے بغیر, جہاں پہ لے کے جانے کا دل تھا 150-60 وہاں پہ نہیں لے کے جانے دیا گیا. اور ماضی میں مثال آپ کے سامنے ہے, نون لیگ کے گورنمنٹ میں یہی چینی 140 روپے تک گئی تھی. ہم ابھی بھی اس کو نیچے لائیں گے, لیکن کچھ اعداد و شمار آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہوں. پوری دنیا میں تیل کی قیمت کورونا کی وجہ سے 178% بڑھی. ہمارے ملک میں یہ قیمت صرف 45% بڑھی. لوگ بار بار کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روپے کے ڈیپریسیشن ہونے کی وجہ سے غریب آدمی پہ اثر پڑا. اور ڈیپریشیٹ کیوں ہوا؟ ان چوروں کا وہ جو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑا ہوا تھا. لیکن یہ کہنا کہ دنیا کے موازنے میں یہاں زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, بالکل جھوٹ ہے. اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں, تیل کی قیمتوں میں 178% مہنگائی ہوئی ہے. پاکستان میں 45% ہوئی ہے. دنیا میں گندم میں 27% مہنگائی ہوئی ہے, پاکستان میں 28% ہوئی ہے. دنیا کے ساتھ ہے, انوکھا کام نہیں ہوا. پاکستان میں دنیا میں جو چینی ہے اس کی قیمت میں 56%, یہ امپورٹنٹ بات ہے, چینی میں 56% پوری دنیا میں اضافہ ہوا قیمت میں. پاکستان میں صرف 18% اس کے موازنے میں اوپر ہوا ہے. پوری دنیا میں 76% کوکنگ آئل, یہ جو آپ گھی کھاتے ہیں, تیل کھاتے ہیں, اس کی قیمتوں میں 76% اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان میں وہ اضافہ بھی جو ہے وہ 10 سے 15% سے زیادہ نہیں ہے. سو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ کیا آپ ان چوروں کی باتیں سنیں گے جو آپ کو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں. ان شیطانوں کے لیے اللہ نے سورہ ناس بھیجی تھی, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس, ان کے لیے بھیجی تھی تاکہ شیطان آپ کے دلوں میں وسوسے نہ ڈال سکیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے, اور چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے ہیں یہاں سے بھاگنا. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ شہباز شریف جس کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا, پنجاب سپیڈ کہا جاتا تھا, ساڈے پنجابی کہندے نے اڈیاں نو تھک لا کے بھجنا. وہ ہن اتوں اڈیاں نو تھک لا کے بھجنا چاہتے ہیں, کدی ایک عدالت جاندے نے, کدی دوسری عدالت جاندے نے. پھر انہوں نے عدالتوں سے اب اپنی پٹیشن واپس لے لی ہے, کیونکہ پہلے جھوٹ بولا تھا عدالت کے ساتھ بھی. تو انشاءاللہ جو ہو گیا ہو گیا. وہ ایک مکری جھوٹا مریض پہلے نکل گیا جھوٹ بول کے. ہن ایتھے احتساب کروانا پینا ہے. اب شہباز شریف صاحب یہاں سے نہیں جا سکیں گے, اب احتساب ہوگا, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मोमन एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जाता। एक दफा नवाज शरीफ के झूठ और मकर से डसे गए, इंसानी हमदर्दी पे उस पर यकीन किया और वो बाहर जाके उन्होंने कोई और ही गुल खिलाए। अब शहबाज शरीफ साहब इस बार नहीं, इस बार तो आज इधर अलाइड हॉस्पिटल में होगा, सिविल हॉस्पिटल में होगा। जो आप इस अवाम के लिए छोड़ के गए और बना के गए, उन्हीं अस्पतालों में अब आपका इलाज होगा। आप कोई आला अरफा इंसान नहीं है कि ये कैमरा मैन, साफी, मैं, ये दूसरे दोस्त यहां से इलाज कराएं और आप वहां से जाके इलाज करवाएं। आप हमारी तरह के इंसान हैं। अब इलाज आपका हर तरह का यही होगा। जो आपका सेहत का इलाज है वो भी यहां होगा, जो आपका दूसरा इलाज करने वाला है वो भी यहीं पे होगा। रही बात दूसरी, जो मरियम बीबी ने परसों एक नया शगुफा छोड़ा। मरियम साहबा के एक वहां फ्रंटमैन हैं, उनके वालिद के और उनके, नासिर भट्ट उनका नाम है, तबीयतन फ्राडी हैं और अक्सर फ्राड शराड बनते हैं दाएं बाएं। उन्होंने एक गाड़ी रेंज रोवर जो है वो किसी को जालसाजी से बेची। उस शख्स का नाम है मियां इमरान, जिसके साथ गाड़ी का जालसाजी का फ्रॉड किया। अब नासिर भट्ट ने क्योंकि कुछ फ्रॉड लाहौर में भी किए थे, उनको लगा कि उधर भी लाहौर ही है, क्योंकि लाम से लंदन, लाम से लाहौर, उनको लगा उत्थे भी काम चल जाना है। पर लाम नाल क्योंकि नवाज शरीफ दे लड़ लगे ने, तो उसलिए उन्होंने कहा इधर भी फ्रॉड में हाथ धो लो, जब मेरे लीडर करते हैं तो मैं भी कर लूं। उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो मियां इमरान साहब थे, उनको पता था कि ये लाहौर नहीं, ये लंदन है, यहां अदालतों में तूल मुकदमे नहीं हो सकते। उन्होंने जाके अदालत में चले गए, ये फ्रॉड में मुझे गाड़ी बेची है। उसका क्या बना? अदालत ने कहा कि इनका घर बेच के नासिर भट्ट साहब का, और इनको इनका पैसा पे किया जाए, या जो भी अदालत ने फैसला किया वो तो अभी आ जाएंगी मालूमात उसकी। उस फैसले का जो इंफॉर्मेशन थी वो देने 4 लोग वहां पहुंचे, क्योंकि नासिर भट्ट साहब वहां रहते हैं, और इन्होंने कह दिया जी हमला हो गया। तो हम तो कहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके वालिद साहब वहां पर इतने गैर महफूज हैं, तो आए अपने वतन में वापस लौटे, जिसमें आप हुकूमत करते रहें। हमारा आपसे वादा है, मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। पहले तो जेल में वैसे ही मुकम्मल सिक्योरिटी होगी, जब सजा पूरी कर लेंगे तो तब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में अवाम भी और पुलिस भी आपकी मुकम्मल हिफाजत करेगी। तो अगर आप एक गैर महफूज मुल्क में रह रहे हैं तो आप वहां ना रहें। और मेरा लंदन की हुकूमत को भी एक पैगाम है, ये जो टब्बर है इनकी आदत है, जो इन्हें इज्जत देता है, जो इन पे एहसान करता है, ये पहले उसी का बेड़ा गर्क करते हैं। ज़ियाउल हक मरहूम ने इन पे एहसान किया था, इन्होंने उसी को बाद में क्या कुछ किया, उसके बेटे के साथ क्या कुछ किया आपके सामने है। उसके बाद जिसने इन पे एहसान किया आपने देख लिया इन्होंने उनके साथ क्या किया। पाकिस्तानी कौम ने एहसान किया, उस टाइम की हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इन पे एहसान किया। इन्होंने बाद में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल की, पाकिस्तान के बारे में क्या की, आपके सामने है। अब इन्होंने लंदन, मैं आपको, क्योंकि मैं अमेरिका में रहा हूं, आपको बता सकता हूं किसी मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उनका ये इमेज कि वहाँ सुकून है, पीस है, क्राइम नहीं है। अगर आप क्राइम का, पीस का, इंतशार का पैगाम दें तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, टूरिस्ट नहीं आता। तो लंदन वालों को भी मुझे अपील है सफारत खाने के थ्रू कि आप सोचें कि ये लोग अब आपके मुल्क में झूठे जब हमलों का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो क्या आपके मुल्क में टूरिस्ट आएगा खौफ से? वो कहेगा वहाँ तो हमले होते फिर रहे हैं लंदन में, एक साबिक वज़ीर आज़म पे हमले हो रहे हैं तो हम पे भी होंगे। तो इसलिए आपने इन पे मेहरबानी की थी, इन्हें पनाह दी थी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ज़ियाउल हक साहब मरहूम और बाकी तमाम लोग जिन्होंने इन पे एहसान किए थे, उन्होंने तो खमियाजा पहले ही भुगत लिया है। अब लंदन वालों की बारी है, उन्होंने इन्हें रखा था, अब वो भी खमियाजा भुगतेंगे। और खमियाजा शुरू हो गया कि झूठे इंतशार की, झूठे हमले की खबरें इन्होंने फैलाई। मामला फ्रॉड का था, लोग वहां बताने गए थे अदालत के ऑर्डर्स, और इन्होंने कह दिया नवाज शरीफ पे हमला हुआ है। तो अवाम को ये पता चाहिए कि इनकी हर बात में सिर्फ एक बात होती है और वो झूठ होती है और कुछ नहीं होता। मैं एक बार फिर आखिर पे आपको ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है इकॉनमी अब पॉजिटिव ट्रैक पे है, तमाम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि इकॉनमी पॉजिटिव ट्रैक पे है। अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है, अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेबिलिटी भी होगी, इकॉनमी भी होगी। और अब पूरा जोर
हमने कंस्ट्रक्शन पे पहले लगाया, हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया, तमाम लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी होगी। अब पूरा जोर इंशाल्लाह ज़राअत पे लगाएंगे, अपने किसान को उठाएंगे। आज मैं अपने गांव भी जा रहा हूं, वहां पर सेम का प्रॉब्लम है, पानी वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गया हुआ है। मेरे भाई, मेरे कजन्स, मेरे गांव के लोग, उन्होंने मेरे से ये बात की थी वहां इस्लामाबाद आके। वज़ीर आज़म साहब ने इसमें खसूसी तवज्जो ली है, क्योंकि वो ज़राअत में खसूसी तवज्जो ले रहे हैं। ये एक बड़े इलाके का मसला है, इसमें 25, 30, 40 गांव इन्वॉल्व हैं। उनकी खसूसी हदायत के ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है और अगले चंद दिन में उसके पैसे जो हैं वो इशू हो जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट से। इसमें मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें मैं वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्श साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पर वो ट्यूबवेल लगेंगे इंशाल्लाह जल्द, और ताकि वहाँ पर वो जो पानी है वो निकले, वाटर टेबल नीचे जाए और किसान दोबारा से अपनी फसलें जो है वो सकें। आपके सवाल जी। देखिए, दो बातें, आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है पाकिस्तान में हुकूमत कैसे की जाती है। पाकिस्तान में हुकूमत की जाती है ले और दे के असूल पे। आज सारे राजी रखते हो, जेड़ा तुहानू गाल कटदा है तुसी उन्होंने इस जेब चो कुछ कट के दे देते हो, जो धमकी लगाता है उसे इस जेब से कट कर, कोई करप्शन में पकड़ा जाता है वो आपको कहता है मैं छोड़ दूंगा, आप उसे जनाब इस वाली जेब से कुछ निकाल के दे देते हो। इमरान खान को भी बड़ा अच्छी तरह से पता है कि हुकूमत कैसे करनी है। पहले दिन से कंप्रोमाइज करते, बड़े आराम से चलती है हुकूमत। ये जो आपने कहा है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक ही ऐसी शौक दियां वंगा पाइया ने हथ नहीं, ये शौक दियां नहीं पाइया, ये असूल दियां पाइया ने। अगर आज इमरान खान एहतसाब की बात ना करे, अगर आज इमरान खान एनआरओ दे, तो आप ये कहें हमारी अपनी पार्टी, अपोजिशन वाले भी वोटें ठोके हमारे नाम पे। क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं ठोकी वोटें नून लीग की तरफ? क्या नून लीग ने नहीं वोटें ठोकी पीपल्स पार्टी की तरफ अपनी अपनी अखबार में? तो इन चोरों से वोट लेना कौन सा औखा है? इनकी तो कीमत ही थोड़ी है। इनकी कीमत कौन सा कोई असूल है? इनकी कीमत तो पैसा है। आप पैसा फेंकें, एनआरओ दें तो ये आपको वोटें देंगे। हाथों के अंगूठे नहीं, पैरों के भी लगाएंगे, ये माथे पे स्याही लगा के भी ठोक देंगे अंगूठा। बात सिर्फ इतनी है कि क्या इमरान खान को पहले दिन से नहीं पता था कि सुकून से हुकूमत कैसे करनी है? क्या मुझे बताइए, एक दिन इमरान खान को इन्होंने सुकून से हुकूमत करने दी है? पहले दिन से इन्होंने किस तरीके का यहां पर इस्तराब रखा, कोरोना के बावजूद कितनी गंदी सियासत की इन्होंने। बड़ा आसान था हमारे लिए, हम भी कर्जे लेते, तनख्वाहें बढ़ते 40-40%, जैसे 6-6 हज़ार एम्प्लॉय डाल दिए। आपने स्टील मिल बंद कर दी, आपने रेलवे का पटड़ा निकाल दिया, आपने पीआईए में 650 अरब का खसारा डाल दिया। हम भी भर्तियां करते, तनख्वाहें बढ़ाते, एनआरओ देते, इनके एमपी एमएनएस को खुश करते, तो क्या होता जनाब? आज आप ये सवाल ही ना कर रहे होते। तो हमें बिल्कुल इदराक है, हुकूमत कल जाती है, अभी 5 मिनट के बाद जाती है, अभी 2 साल के बाद जाती है, 2023 में पूरी मुद्दत पूरी करने के बाद जाती है। जिस लीडर को मैं जानता हूं और जिसके लिए मैं काम करता हूं, खुदा की कसम उसे जरा सी परवाह नहीं है। वो हुकूमत की कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आया था, आवाम की खिदमत करने के लिए आया था। जिस मोमेंट तक बैठे हैं, इन चोरों का पीछा करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। हुकूमत जाती है, जाए, अपोजिशन में आके खिदमत करेंगे आवाम की। चले मैं आगे आ जाता हूं। पाकिस्तान के जो बाहर बैठे मुजरिम हैं, आपके मुताबिक उनको अभी तक इंटरपोल के जरिए नहीं पकड़ने की? इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो रही है ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं। और ये जो हमले वाला नासिर भट्ट नामी फ्रॉडिया जो है, उसके ऊपर जो हमले वाला इन्होंने बनाया है, ये मेरे ख्याल में बनाया ही इसलिए है कि अब वो वक्त करीब आ रहा है जब नवाज शरीफ को वहाँ से डिपोर्ट करना है। तो ये अब एक शाखसाना बनाया जाएगा कि उन पे कातलाना हमले हो रहे हैं, तो उनको महफूज नहीं है, तो उनको लंदन में रहने दिया जाए। तो ये आपका सवाल बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है, और ये उसी का शाखसाना है ये जो हमला हो रहा है। एक सवाल और लेते हैं और उसके बाद आपसे। ये बताइएगा कि अपोजिशन फिर इकट्ठी हो रही है,
है शहबाज शरीफ साहब की कशाइया रख रहे हैं, उसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब बिलावल साहब को भी दावत दी है, तो मरियम नवाज का क्या मुस्तकबिल देखते हैं और अपोजिशन का क्या मुस्तकबिल है? बस अफसोस होता है, अपनी बाजी पे अफसोस होता है, इतनी मेहनत करके भी हमारे हाथ कुछ ना आया। तो मैं यही कहूँगा कि बाजी के लिए अफसरदगी है और कुछ नहीं। गिल साहब, शहजाद अकबर के बारे में जो इस वक्त तरीन की जमात है बनी हुई, उसका ग्रुप है, उसमें से चौहान ने कहा कि वो कादियानी हैं। आपकी सारी गुफ्तगू इसके मुस्तफ़ा पर हुई है। ये बार बार शहजाद अकबर पर क्यों मसले उठ रहे हैं? आप ही के लोग क्यों उसके ईमान पर और उसके जो किरदार गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन तो कर सकती है? आपके अपने अंदर ये डिस्ट्रक्शन क्यों आ रही है? कभी राजा रियाज असम्बली में जाकर कौमी असम्बली में इमरान खान के पैरेलल पेश होगा, ये बातें क्यों हो रही है? डिस्ट्रक्शन किस हद तक है? अच्छा, दो बातें। पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, असी पिंडां दे रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा शहरों के रहने वालों का कोई फर्क है, लेकिन सिर्फ तो एक गल दस देना, असी गुनाहगार हैं, नमाज भी कई बारी पूरी नहीं पढ़ पाते, होर भी अल्लाह के अहकामात पूरे नहीं कर पाते, लेकिन एक चीज़ हैगी है जिथे साडा मेच कोई नहीं हैगा, ना साडा मेल है, वो अल्लाह के शुक्र नाल सीना ठोक के कहने, वो इश्के रसूल मुहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी साडा कितना भी गुनाहगार बंदा होए, वो अपने प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ओदा दिल धड़कदा है। जो शहजाद अकबर हैं वो एक सियल अकीदा मुसलमान है। ये बकवास और गंद मेरे बारे में भी बोला गया था, जेड़ा भी मंजी पीढ़ी ठोकदा। आपको बता रहे हैं कि शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहना था कि इमरान खान का मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना है, वो अपोजिशन में भी हम करेंगे। हुकूमत अब जाती है या मुद्दत पूरी करती है, इमरान खान को कोई परवाह नहीं। शहबाज गिल की जानिब से मजीद कहना था कि इन लोगों की कीमत बहुत कम है, आज NRO दें तो ये इमरान खान को वोट देंगे।